Very good morning to all of you. Class 7. Very good. Now, my dear student, in the last session we had completed chapter 4. Now, in this session, we are going to start chapter 5, that is graphics and sound programming. Graphics and sound programming. See, in this chapter, which topic we are going to learn, that topic I just introduced you, that is nothing but the graphics and sound programming. It is an overview, that overview, what kind of that overview that we are going to learn. Second, that is color statement, then creating a graphics in QBasic, screen statement, and generating a sound effect in QBasic. Means actually this chapter is totally based on the practical base. Means in the last session we had completed and we just introduced the QBasic. In that QBasic, what kind of graphics we can utilize, which kind of graphics practical we can do, and how we can do, which statement we can utilize, which color we can apply, which shapes we can draw, which kind of sound we can add in our programming. These things we are going to learn in this chapter. तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये आपको समझ में आया? चलो, नाउ लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर. सी, the programming written in QBasic can be used not only to display the text. जो भी प्रोग्राम हम लोग QBasic में लिखते हैं सिर्फ टेक्स्ट डिस्प्ले करने के लिए उसका यूज नहीं है, उसका यूज थोड़ा और भी है. तो वी कैन यूज द QBasic आउटपुट स्क्रीन to display the graphics, to play the musical notes. So these things we are going to learn. Now, graphics and sound programming. QBasic is the most popular variation of Microsoft Basic. Apart from file management. फाइल मैनेजमेंट तो हम लोगों ने लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा. तो उसके अलावा QBasic क्या क्या काम करता है? तो वो शेप्स लाइक लाइन, स्क्वायर, सर्कल ये ड्रॉ करने का काम करता है. उनको अलग अलग कलर अप्लाई करने का काम करता है. आई जस्ट प्ले वन वीडियो, यू जस्ट लिसन एंड वॉच. Fundamentals of computer graphics. The fundamental elements of computer graphics are small dots called pixels, that is picture elements. The pixels can be combined to form more complex shapes just as letters are combined to form words, sentences and paragraphs. The level of detail, that is the resolution of a graphics display, is measured in terms of the largest number of horizontal and vertical pixels that can be displayed at any time. तो आपको समझ में आया? हाँ, तो इसमें क्या होता है कि पिक्सेल होता है. पिक्सेल किस तरह से काम करता है? हाँ, पिक्सेल माने एक सबसे टाइनी डॉट होता है, जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है. हाँ, तो ये जो पिक्सेल होता है, हमारा जो स्क्रीन है, जो स्क्रीन हम लोग देखते हैं वो स्क्रीन पिक्सेल से बना हुआ रहता है. पिक्सेल से मतलब नंबर ऑफ टाइनी डॉट्स मिलाकर एक स्क्रीन बनता है. जितने ज़्यादा पिक्सेल स्क्रीन पर होते हैं उतना उसका रिजोल्यूशन हाई होता है. अभी हम लोग HD टीवी देखते हैं ना, हमारे टीवी जो होता है हम लोग HD टीवी ही खरीदते हैं मार्केट से, बराबर. हाँ, तो हम लोग HD टीवी क्यों खरीदते हैं? हाँ, हाई डेफिनेशन मेगापिक्सल. हाँ, तो ये जो हाई डेफिनेशन कैसे बनता है, मतलब इसमें पिक्सल ज़्यादा क्वांटिटी के पिक्सल होते हैं, इसलिए उसको हाई डेफिनेशन कहा जाता है. और जिस टीवी में पिक्सल का साइज कम होता है, रिजोल्यूशन कम होता है, उसका जो होता है वो HD क्वालिटी नहीं होता है, वो नॉर्मल क्वालिटी का स्क्रीन होता है. तो वही चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं. नाउ, दिस इज द फंडामेंटल कंप्यूटर ग्राफिक्स.
Here what we are going to learn in the fundamental C means here we can draw a different kind of drawings. We can add the colors in the drawing. So how we can do this? With the help of color statement. We directly start the color statement. What the color statement? In QBasic, the color statement is used to display colors on the screen, and the syntax of the color statement is as follows. कैसा है? सिंटैक्स क्या है उसका? देखिए, उसका सिंटैक्स है सीधा कलर लिखो और उसके बाद कोड लिखो. कलर ये शब्द टाइप करना है और उसके बाद कोड. तो यहाँ पर राइट साइड में हमें कलर्स के नेम और उनका कोड दिया गया है. इन कलर के साथ अगर ये कोड हम लोग यूज करते तो QBasic में वो कलर तुम लोग अप्लाई कर सकते हो. सी वेयर द कलर कोड रिप्रेजेंट्स दैट द नंबर इज यूज. द नंबर इज यूज टू सेट द रिक्वायर्ड कलर. कलर सेट करने के लिए ये कलर कोड यूज होता है. द कलर स्टेटमेंट टेक्स टू नंबर्स वैल्यूज. द फर्स्ट नंबर इज यूज टू सेट द फोरग्राउंड कलर एंड द सेकेंड नंबर इज यूज टू सेट द बैकग्राउंड कलर. हम लोग कलर स्टेटमेंट के साथ, कलर सिंटैक्स के साथ हम लोग दो नंबर यूज करने वाले. पहला नंबर है जो फोरग्राउंड कलर डिस्प्ले करेगा और सेकेंड नंबर बैकग्राउंड कलर डिस्प्ले करेगा. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है. इफ यू वांट टू प्रिंट द ब्लैक ऑन व्हाइट इंस्टेड ऑफ व्हाइट ऑन ब्लैक, यूज कलर 07. 0 ये जो नंबर है ये ब्लैक कलर के लिए है और 7 नंबर जो है वो ग्रे कलर के लिए, मतलब व्हाइट कलर के लिए. सो लेट अस डू द प्रैक्टिकल हाउ वी कैन यूज दिस. देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है उन्होंने. अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन येलो कलर विद द ग्रीन बैकग्राउंड. एक प्रोग्राम उन्होंने दिया है. क्या प्रोग्राम दिया है? कि टू डिस्प्ले अ टेक्स्ट इन येलो कलर विद ग्रीन बैकग्राउंड. और इस तरह से उसका आउटपुट दिखाई देगा. यहाँ पर वो प्रोग्राम राइट किया, यहाँ पे आउटपुट ऐसे दिखाई देगा. वैसे ही प्रोग्राम टू डिस्प्ले द टेक्स्ट इन रेड कलर विथ ग्रीन बैकग्राउंड. ग्रीन बैकग्राउंड के लिए वो प्रोग्राम लिखा जाएगा. अभी ये प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखते हैं अभी वो हम लोग देखेंगे. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है उन्होंने? कलर 14 एंड 18, क्लियर स्क्रीन, ग्रीन बैकग्राउंड, प्रिंट येलो बैकग्राउंड. अभी हम लोग ये प्रैक्टिकल करके देखेंगे. लेट अस डू द प्रैक्टिकल. जस्ट ओपन आवर QBasic. Go in the file, new file. ये न्यू फाइल ओपन हो गई. ये स्क्रीन आपको सामने दिखाई दे रही है ना सबको? हाँ, तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर हम लोग पहले हमारा पहला सिंटैक्स लिखेंगे CLS. CLS इज फॉर क्लियर द स्क्रीन. देन उसके बाद वह उन्होंने क्या बोला है? कलर कोड. कलर कोड के लिए कौन सा ऑप्शन है? देखिए कलर कोड. कलर 14, 18. 14, 10 लिख देते हैं. 14, 10. तो 14 पे कौन सा कलर है? 14 पे है येलो कलर और 10 पे है लाइट ग्रीन. तो अभी ये 14 जो नंबर है, मतलब ये टेक जो हम लोग टाइप करेंगे उसका वो कलर दिखाएगा, और 10 वो जो है 10 नंबर लाइट ग्रीन वो बैकग्राउंड वाला कलर दिखाएगा. अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट स्टेटमेंट. प्रिंट क्या काम करता है? प्रिंट शिफ्ट शो करने का काम करता है, जो हम लोग इस डबल कोट में लिखेंगे. प्रिंट 14 नंबर कौन सा था? येलो कलर.
हाँ, येलो कलर फोरग्राउंड, मतलब ये फोरग्राउंड दिखाएगा हमें, फोरग्राउंड। हाँ, ये हम लोगों ने टाइप किया। फिर हम लोगों ने प्रिंट कमांड लिखा और छोड़ दिया। इसका मतलब क्या होता है कि एक सिर्फ प्रिंट कमांड लिख कर हम लोगों ने छोड़ दिया और हम लोग नेक्स्ट लाइन पर आ गए। मतलब उस कमांड का क्या मतलब क्या हुआ कि तू एक लाइन ब्लैंक छोड़ दे। हाँ, और फिर से हम लोग प्रिंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे हाँ, कौन सा कलर है, 10 नंबर वाला कौन सा कलर है, लाइट ग्रीन। ये जो मैं लिख रहा हूं लाइट ग्रीन, येलो, ये लिखने से कलर वहां पे नहीं आने वाले हैं। ये सिर्फ टेक्स्ट है। ये क्या है, सिर्फ टेक्स्ट। हाँ, अभी हम लोग इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रन मेनू में जाते हैं यहां पर और स्टार्ट। ये देखिए, ये हमारा आउटपुट यहां पर आ गया। क्या आउटपुट आया, हाँ, जो फोरग्राउंड कलर है वो किस में आया, फोरग्राउंड कलर येलो में आया और बैकग्राउंड कलर 10 नंबर लाइट ग्रीन में आ गया। ये दिखाई दे रहा है। और हम लोग फिर से थोड़ा अलग कलर नंबर देते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग ब्लू कलर या ब्लैक कलर देते हैं। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर में ब्लैक कलर के लिए क्या है, कलर कोड ब्लैक कलर के लिए 0 है, हाँ? 0 हम लोग यहाँ पर 0 देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर 0 दिया और फिर से हम लोगों ने इसको रन किया। ये देखिए हमारा आउटपुट कौन से कलर में आया, जो टेक्स्ट है वो ब्लैक कलर में आई और उसके उसके पीछे वाला बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रीन कलर में आया। तो ये चेंज आपको समझ में आ रहा है। हाँ, तो ऐसे ही आप अलग अलग कोड यूज करके आपका जो भी टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आप स्क्रीन पे दिखाना चाहते हो, उसका फोरग्राउंड कलर क्या चाहिए, उसका बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए। फोरग्राउंड कलर के लिए जो पहला नंबर यूज करेंगे हम लोग कलर सिंटैक्स के साथ, हाँ, तो वो फोरग्राउंड कलर के लिए है। और जो उसके बाद वाला कॉमा करके जो नंबर लिखेंगे वो बैकग्राउंड कलर के लिए। अभी हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर नहीं लिखते, हम लोग सिर्फ यहाँ पर अभी कौन सा कलर लेते हैं, हम लोग दूसरा कलर लेके देखते हैं, डार्क रेड 4 नंबर देते, सिर्फ 4 नंबर लेंगे हम लोग। हाँ, 4 नंबर लेंगे और यहाँ पर देखिए क्या होगा, 4 नंबर पे क्या होगा। हाँ, अभी हम लोग ये शिफ्ट F5 दबा देंगे। हम लोगों ने सिर्फ एक कोड यूज किया हुआ है, एक कोड यूज किया तो सिर्फ हमारा जो टेक्स्ट है वो रेड कलर में आ गया। हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर के लिए कोई कोड रखा ही नहीं। हाँ? कोई कोड हम लोगों ने यूज किया नहीं, इसलिए उसको बैकग्राउंड कलर आया ही नहीं। आया समझ में। फिर से हम लोग वापस उसमें आ गए। हाँ? अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये देखिए वही दिया है उन्होंने यहाँ पर। हाँ, एक थर्ड एग्जांपल दिया है उन्होंने, क्या, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ ब्लिंकिंग टेक्स्ट, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले अ ब्लिंकिंग टेक्स्ट। तो उसके लिए उन्होंने कौन सा प्रोग्राम दिया हुआ है, द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम इज फॉलोज इन द टेक्स्ट क्यू बेसिक विल ब्लिंक। क्या दिया है उन्होंने, CLS कलर 16 और 0 करके दिया है। ये प्रोग्राम हम लोग करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर सिक्सटीन, शिफ्ट F5 दबाएंगे। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है।
ब्लिंक नहीं हो रहा है, मतलब कुछ तो गलत हुआ है यहाँ पर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी फिर से इसको रन करके देखेंगे। वो ब्लिंकिंग नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, नहीं हो रहा है, कोई टेंशन नहीं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हाँ, अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले कलर चार्ट। अगर हमें कलर चार्ट हमें पूरा दिखाना है, हाँ, हमें अगर पूरा कलर चार्ट हमारे स्क्रीन पर दिखाना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे, ये देखिए, ये वाला प्रोग्राम हम लोग यूज़ करेंगे। इसमें क्या लिखा लिया है उन्होंने, क्लियर फंक्शन यूज़ किया हुआ है, अगेन प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट, और फॉर लूप यूज़ किया हुआ है उन्होंने। फॉर लूप 0 से लेके 15 तक, हाँ, 0 से लेके 15 तक, ये हम लोग प्रोग्राम करके देखेंगे। ये प्रोग्राम कैसे किया है हम लोग ट्राई करते हैं। हाँ, ये देखिए, अभी ये प्रोग्राम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे CLS, CLS के बाद CLS के बाद हम लोग प्रिंट यूज़ करेंगे। प्रिंट में हम लोग लिखेंगे स्टार 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 डिस्प्लेइंग कलर चार्ट। हाँ, ये हम लोग डिस्प्ले करके देखेंगे वहाँ पर। ये कंप्लीट किया प्रिंट स्टेटमेंट के बाद फिर से एक प्रिंट स्टेटमेंट देंगे खाली लाइन छोड़ने के लिए, ब्लैंक लाइन छोड़ने के लिए। फिर उसके बाद हम लोग एक फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, फॉर लूप। ये फॉर लूप क्या करता है, ये भी एक टाइप का फंक्शन है। हाँ, मतलब एक एक्शन को आपको रिपीटेटिव टाइम फिर से दोहराना है। हाँ, कितने टाइम तक दोहराना है उसको ना, उसके लिए ये फॉर लूप होता है। तो फॉर लूप किस लिए होता है, एक ही चीज़ नंबर ऑफ टाइम्स को उसको रिपीट करना है, उसके लिए फॉर लूप लिया जाता है। फॉर लूप का मतलब समझ में आया सबको स्टूडेंट्स? फॉर लूप का मतलब समझ में आया? हाँ, हाँ, फॉर लूप का मतलब क्या होता है, मेरी आवाज़ तो आ रही ना आप सबके पास? हाँ, तो फॉर लूप का मतलब क्या होता है कि हम लोग कोई भी अगर फंक्शन या कोई भी टेक्स्ट हमें रिपीटेटिव टाइम उसको डिस्प्ले करनी है, या कोई भी एक्शन हमें नंबर ऑफ टाइम्स परफॉर्म करनी है, उसके लिए फॉर लूप लिया जाता है। अभी समझ में आया? हाँ, तो कैसे करते हैं मैं अभी दिखाता हूँ। फॉर, उसके लिए क्या लिखना पड़ता है, फॉर लिखने के बाद आपको इक्वल टू साइन लिखना पड़ेगा, फॉर। हाँ, यहाँ पर लिखोगे आप आई, कोई भी एक वेरिएबल लेना पड़ता है, आई इज इक्वल टू 0 to 15। मतलब अब हमारे जितने भी कोड है 0 से लेके 15 तक, उन सबको तू रिपीट कर। मतलब कितनी बार रिपीट करेगा ये, 15 बार रिपीट करेगा, 0 से लेके 15 तक। मतलब 15 टाइम्स तू क्या कर, वो रिपीट कर। क्या रिपीट कर, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कलर। हाँ, कलर आई, कॉमा 0। मतलब जो कलर है वो तू क्या कर, रिपीट कर। देन प्रिंट कर, प्रिंट आई इज इक्वल टू, ये जो हम लोग इसमें लिख रहे हैं, ये वो क्या करेगा, कलर का नाम डालेगा, कौन सा कलर है वो।
हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट यूज करेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें यूज करना पड़ता है फॉर लूप। जब हम लोग फॉर लूप यूज करते हैं उसके साथ हम लोगों को एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, और स्टेटमेंट के बाद हम लोगों को नेक्स्ट, मतलब नेक्स्ट इसलिए है कि जो एक एक बार जो घूमेगा, वो घूमने के बाद यहाँ पे कलर, जो फॉर लूप के बाद हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिया है, वो प्रिंट स्टेटमेंट वो 15 टाइम्स क्या करेगा, प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। हाँ, और ये जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसको एक एक नंबर से उसको बढ़ाते जाएगा। नेक्स्ट आई, नेक्स्ट आई। हाँ, जब हम लोग इसको शिफ्ट F5 दबाएंगे, देखिए हाँ हमारा प्रोग्राम रन हो गया। आया समझ में? ये कैसे रन हुआ ये समझ में आया किसी को? कोई प्रॉब्लम है इसमें बच्चों? ये वाला प्रोग्राम समझ में आया क्या? इसमें कुछ प्रॉब्लम है इस प्रोग्राम में? ये देखिए, हम लोग फिर से एंटर करके ये देखिए, ये प्रोग्राम क्या है। यहाँ पर हम लोगों ने CLS टाइप किया। CLS आपको पता है। ये प्रिंट स्टेटमेंट भी आपको पता है। ये प्रिंट स्टेटमेंट एक लाइन छोड़ने के लिए, हाँ एक लाइन छोड़ते हैं हम लोग, ब्लैंक लाइन, उसके लिए। और उसके बाद ये फॉर लूप है। फॉर लूप किस लिए है कि ये फॉर और ये नीचे वाला नेक्स्ट, ये जो है फॉर स्टेटमेंट है और सबसे नीचे वाला नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन दो स्टेटमेंट के बीच में जो आप लिखोगे वो उतने टाइम्स रिपीट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? क्या रिपीट होते जाएगा? ये दो स्टेटमेंट, कौन सा दो स्टेटमेंट? ये वाला एक स्टेटमेंट फॉर लूप का, और ये नेक्स्ट स्टेटमेंट। हाँ, इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में हाँ जो भी आप लिखोगे हाँ वो उतने टाइम्स रिपीट होगा। मतलब 0 से लेके 15 तक हम लोग रिपीट करना चाहते हैं। तो क्या रिपीट करना चाहते हैं हम लोग? कलर का कोड, और कलर का कोड और उसके साथ वो कलर हम लोग डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इन दो स्टेटमेंट के बीच में प्रिंट स्टेटमेंट लिया है। हाँ, तो उतने बार वो कलर का कोड भी और वो कलर डिस्प्ले कर रहा है जब हम लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं। तो ये देखिए, एक नंबर पे ब्लू कलर है, 2 नंबर पे ग्रीन कलर है। तो ये 15 टाइम्स क्या हुआ, रिपीट हुआ उस कलर के साथ। समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग अ ग्राफिक्स इन क्यूबेसिक। हाँ, ग्राफिक्स। अभी ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है? ग्राफिक्स मीन्स विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट और योर कंसेप्ट। आपका जो भी कंसेप्ट होता है उसको विजुअली प्रेजेंट करना, ऑडियंस को दिखाना। हाँ, तो ऑडियंस को हम लोग हमारा प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, उसे कहते हैं ग्राफिक्स। द वर्ड ग्राफिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम वर्ड ग्राफ। ये ग्राफिक्स वर्ड कहाँ से डिजाइन हुआ, लिया गया है? ग्राफ से। ग्राफ आप लोगों को पता होगा, मैथमेटिक्स में आप लोग ग्राफ यूज करते हो। हाँ, तो ये ग्राफिक्स वर्ड वही से डिराइव किया गया है। हाँ, तो ग्राफ में एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है। वैसे ही हम लोग क्यूबेसिक प्रोग्रामिंग में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस यूज करते हैं। किस लिए? नंबर ऑफ पिक्सल और रिजोल्यूशन ड्रॉ करने के लिए। कोई भी पिक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जैसा प्रोसीजर यूज करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मतलब क्या? मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेटर एंड वाई कोऑर्डिनेटर। मतलब उसका एक्स कोऑर्डिनेटर क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेटर क्या होगा, इससे वो ड्राइंग डिज़ाइन की जाती है। हाँ, देखिए अभी मैं एक वीडियो रन करता हूँ, आप लोग
उसको वॉच करो और लिसन करो। Creating graphics in QBasic. Graphics are visual presentation of objects and concepts on a surface such as a wall, canvas, screen, paper, etc. The word graphics has been derived from the word graph. Like a graph has an x-axis and a y-axis, digital graphics displayed on a digital screen, which in turn requires x-axis and y-axis. Before creating graphics in QBasic, it is important to understand how graphics are displayed on the computer screen. In the computer graphics, a pixel or PEL is a physical point in a display device. Therefore, it is considered the smallest controllable element of a picture presented on the screen. The address of a pixel corresponds to its physical coordinates. In color image systems, a color is typically represented by 3 or 4 component intensities such as red, green, cyan, magenta, yellow and black. तो आप लोगों को समझ में आया कि ग्राफिक्स क्या होता है? हाँ हाँ, एक शॉर्टकट में थोड़ा और बताता हूँ। ग्राफिक्स क्या होता है, आप अलग अलग कलर्स में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसको कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेट क्या होता है कि उसका एक्स पॉइंट क्या है और उसका वाई पॉइंट क्या है। हाँ, वो एक्स और वाई पॉइंट को आपको क्या करना पड़ता है, लोकेट करना पड़ता है कोई भी डिज़ाइन करने के लिए और उसको कलर देने के लिए। तो कलर देने के लिए हमारे पास, हम लोगों के पास कोड तो है और कोड हम लोग यूज़ करेंगे और उस कोड के साथ हम लोग उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट लोकेट करने के बाद वो ड्राइंग वहाँ पर क्या होगी, ड्रॉ होगी। हाँ, तो वही चीज़ें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट कैसे देना है। हाँ, तो ये समझ में आया ग्राफिक्स? हाँ, तो अभी हाँ, तो ग्राफिक वन क्या होता है? देयर आर टाइप्स ऑफ ग्राफिक मोड्स। हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में क्यूबेसिक स्क्रीन के तीन टाइप के स्क्रीन आते हैं। हाँ, तो पहला टाइप का स्क्रीन कौन सा होता है, देखिए। हाँ, ग्राफिक्स मोड 1। हाँ, मैं अभी फिर से एक वीडियो रन करता हूँ, वो देखिए। The types of graphics mode used for QBasic programming. Graphic mode 0. By default, QBasic uses mode 0 for the screen. In mode 0, the screen is a grid of 80 columns and 25 rows. Your program can write to each of these grid locations. The top left corner of the screen is the location 1, 1, that is row 1, column 1. The bottom right corner of your screen is 80, 25, that is column 80, row 25. Remember that the coordinates for a grid location are by first writing the column number and then the row number. In this mode 0, you can specify printing characters at grid locations. This does not allow you to make use of the resolution of your monitor. Graphics mode 1. In graphics mode 1, the resolution of the screen is 320 columns and 200 rows of pixels. The coordinates of the top left corner pixel are 0, 0 and the coordinates of the bottom right corner pixel are 319, 199. The graphics mode 1 is known as medium resolution graphics screen. Graphics mode 2. In graphics mode 2, the resolution of the screen is 640 columns and 200 rows of pixels, giving you twice the number of columns as graphics mode 1. The coordinates of the top left corner are 0, 0 and the coordinates of the bottom right corner are 639, 199. The graphics mode 2 is known as high resolution graphics screen. ये वाला वीडियो समझ में आया? मैं इसको शॉर्टकट में और बताता हूँ, देखिए। ग्राफिक्स, हमारे क्यूबेसिक ग्राफिक्स में 3 टाइप के स्क्रीन होती है। पहला स्क्रीन होता है डिफ़ॉल्ट ग्राफिक मोड 1। उसमें क्या होता है कि
जो स्क्रीन होता है वो स्क्रीन नॉर्मल व्यू वाला होता है। उस नॉर्मल व्यू में क्या होता है, इस तरह का ही स्क्रीन होता है जहाँ पर उसका 0 0 उसका लेफ्ट कॉर्नर 0 0 होता है और उसका राइट बॉटम कॉर्नर 80 कॉलम्स का होता है। हाँ, 80 कॉलम्स का, 80 to 25, मतलब 80 रोज 25 कॉलम्स, इस तरह से। और दूसरा स्क्रीन होता है मीडियम रिजोल्यूशन वाला। उसमें क्या होता है, उसका कोऑर्डिनेट लेफ्ट लेफ्ट वाला कोऑर्डिनेटर 0 0 होता है और राइट बॉटम वाला, मतलब सबसे लास्ट वाला कोऑर्डिनेटर क्या होता है, 400 to 200, मतलब 400/200 उसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं। उसको मीडियम रिजोल्यूशन कहते हैं। हाँ, और तीसरा नंबर का स्क्रीन कैसे होता है कि उसको उसका जो लेफ्ट वाला कॉलम होता है वो 0 0 से लेके 640/200 इतने रोज एंड कॉलम्स उसमें होते हैं। 640 रोज एंड 200 कॉलम्स, मतलब उसको हाई रिजोल्यूशन कहा जाता है। तो ये 3 टाइप के स्क्रीन हमारे क्यू बेसिक्स ग्राफिक्स में होते हैं। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. Yes, sir. 1 second, I just start again. अभी हम लोग देखेंगे स्क्रीन स्टेटमेंट। क्या देखेंगे हम लोग? स्क्रीन स्टेटमेंट। स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होता है? स्क्रीन स्टेटमेंट इज यूज टू सिलेक्ट द स्क्रीन मोड टू डिस्प्ले द कंप्यूटर ग्राफिक्स। हाँ, हम अभी हमें पता चला है कि हमारे पास 3 टाइप्स के स्क्रीन होती है। तो उस स्क्रीन को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, उसके लिए होता है स्क्रीन स्टेटमेंट। तो ये स्क्रीन स्टेटमेंट हम लोग यूज़ करते हैं अलग अलग स्क्रीन सिलेक्ट करने के लिए। तो कैसे किया जाता है देखिए। Screen statement. The screen statement is used to select a screen mode to display the computer graphics. In QBasic, you can adjust the screen resolution as per your choice. The term screen resolution represents the number of pixels per square inch that a monitor can display. It is usually quoted as width into height, with the units in pixels. For example, 1024 into 768 means the width is 1024 pixels and the height is 768 pixels. The syntax of screen statement is screen mode number. Mode number is the number that sets the screen mode. The higher the resolution, the better is the display quality. The two types of modes used are text mode and graphics mode. The text mode is used to display only text on the screen, whereas the graphics mode is used to display both text and graphics on the screen. The table summarizes the list of screen modes and resolution. अभी समझ में आया स्क्रीन स्टेटमेंट क्या होता है? स्क्रीन स्टेटमेंट सिर्फ स्क्रीन सिलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं।
हाँ, तो उसका प्रैक्टिकल हम लोग करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, हाँ, यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि कोऑर्डिनेट्स कैसे लिए जाते हैं। पी सेट स्टेटमेंट, हाँ, पी सेट स्टेटमेंट स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्क्रीन कैसे सिलेक्ट करते हैं उसका प्रैक्टिकल देखेंगे। सी, हाँ, हम लोग फिर से एक नया प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं, CLS। हाँ, फिर हम लोग यूज़ करेंगे स्क्रीन। हम लोग लेंगे 7 नंबर, स्क्रीन हम लोग लेंगे 7 नंबर। हाँ, फिर हम लोग यूज़ करेंगे पी सेट स्टेटमेंट। पी सेट स्टेटमेंट, पी सेट स्टेटमेंट किस लिए यूज़ किया जाता है कि अगर हमें पिक्सल सेट करना है, मतलब उसको क्या कोऑर्डिनेशन देना है। कोऑर्डिनेशन मतलब उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या देना है। हाँ, अगर हम लोगों ने यहाँ पर एक्स एक्सिस दिया 35 कॉमा, हाँ, हम लोगों ने वाई एक्सिस दिया उसका 37, हाँ, और उसको कलर दिया हम लोगों ने 12। उसको कलर दिया हम लोगों ने, फिर से यहाँ पर कॉमा देंगे, हाँ, 12, हाँ, और हम लोग एंटर करेंगे। हाँ, फिर से हम लोग वही स्टेटमेंट यूज़ करेंगे किसी अलग कोऑर्डिनेशन के लिए। अलग कोऑर्डिनेशन क्या हो सकता है, हाँ, आया समझ में। तो अलग कोऑर्डिनेशन हम लोग देंगे उसको 55 कॉमा 57, फिर देंगे हम लोग यहाँ पर 13, फिर से देंगे फी सेट इन ब्रैकेट 77 कॉमा 78 14। हाँ, जब हम लोग इसको रन करेंगे, हम लोग इस प्रोग्राम को अभी हम लोग रन करेंगे, शिफ्ट F5। हाँ, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, हाँ, यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं आपको स्क्रीन पर। 3 डॉट एक लाइन में दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक टाइनी डॉट्स आपको दिखाई देते होंगे इस पर। वो टाइनी डॉट हम लोगों ने एक लाइन में लिए हुए। सबको टाइनी डॉट्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए अलग। Yes, sir. हाँ, बहुत ही बारीक डॉट है वो, उनको पिक्सल कहते हैं। वो देखिए टाइनी डॉट दिखाई दे रहे हैं एक ही लाइन में, डायगोनल लाइन में, देखिए डायगोनल लाइन में हो। Slanting line में. हाँ, स्लैंटिंग लाइन में, करेक्ट। हाँ, स्लैंटिंग लाइन, उसको थोड़ा और हम लोग बड़ा करने का प्रयास करते हैं। स्क्रीन 7, पी सेट। पी सेट का मतलब क्या होता है, हम लोग पिक्सल को सेट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेशन, वाई कोऑर्डिनेशन एंड इसमें हम लोग एक्स वाई पोजीशन में उसको क्या करते हैं, सेट करने का प्रयास करते हैं। अभी पी सेट 35 37 यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब हम लोग उसको उसका एक्स कोऑर्डिनेटर 35 होगा और वाई कोऑर्डिनेटर उसका 37 होगा। हाँ, और उसका कलर कोड हम लोगों ने 12 दिया है। हाँ, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्रीन 7 यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर हम लोग स्क्रीन अलग भी यूज़ कर सकते हैं, स्क्रीन 12 डाल सकते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर स्क्रीन 12 डालेंगे तो अगर क्या चेंज होता है हम लोग देखते हैं। ये देखिए, हाँ, 12 की डालने से क्या हुआ, ये स्क्रीन और बड़ा हो गया, वो पिक्सल और बारीक हो गए, हमारा साइज बढ़ गया, स्क्रीन का साइज बढ़ गया। यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा शायद, लेकिन स्क्रीन का साइज बढ़ गया है। हाँ? ये मतलब ये हाई रेजोल्यूशन वाला हो गया। अभी Sir, वो कोने में 3 दिख रहे छोटे-छोटे. हाँ, वो छोटे छोटे दिख रहे थे, मतलब हमारा स्क्रीन बड़ा हो गया और हमारा पिक्सल साइज बढ़ गया। और हम लोग इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हम लोग
5 नंबर वाला देते हैं या 5 नंबर वाला देखकर देखते हैं। हम लोग F5 दबाते हैं। इलीगल फंक्शन कॉल, 1 सेकेंड है, कुछ तो गलत हो रहा है। ये रन हुआ। हाँ, ये देखिए, ये रन हुआ, मतलब 12 साइज का है और 2 साइज का है। 2 साइज का हम लोग देते हैं, शिफ्ट F5। ये देखिए फिर से यहाँ पर डॉट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन छोटा हो गया है और हमारे जो हाँ वो थोड़ा स्लांट साइड में आ गया, थोड़ा और लेफ्ट साइड में आ गया। मतलब वी कैन चूज डिफरेंट स्क्रीन। हाँ, जिस तरह का हम लोगों का ड्राइंग है उस तरह से हम लोग हमारा स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं। और स्क्रीन सिलेक्ट करने के कौन से नंबर दिए उन्होंने, 0, 1। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए 0, 1, 2, 7, 9, 12 एंड 13। ये अलग अलग स्क्रीन मोड दिए हुए हैं हमारे वर्जन के लिए। क्यों बेसिक वर्जन के लिए ये अलग अलग 7 स्क्रीन मोड दिए हुए हैं। तो स्क्रीन मोड पी सेट, ये आपको समझ में आया। पी सेट का मतलब टू सेट दी एक्स एक्सिस एंड वाई कोऑर्डिनेटर, मतलब वो किस पॉइंट पे हमें चाहिए, वो हम लोग उसको सेट करते हैं। अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लाइन स्टेटमेंट। लाइन स्टेटमेंट क्या होता है? लाइन स्टेटमेंट इज यूज टू ड्रॉ अ लाइन बिटवीन 2 पिक्सल। 2 पिक्सल के बीच में अगर हमें लाइन ड्रॉ करनी है तो हम लोग कौन सा सिंटैक्स यूज करेंगे? तो लाइन स्टेटमेंट यूज करेंगे। इस तरह से लाइन x1 y1 x2 y2 कलर BF, कलर BF। हाँ, मतलब बैकग्राउंड कलर एंड फोरग्राउंड कलर। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ उन्होंने, देखिए, हाँ, CLS स्क्रीन 13 लाइन 80 80 एंड 110 एंड 110। ये एग्जांपल हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ऐसी लाइन ड्रॉ होती है क्या। हाँ, लेट अस डू द प्रैक्टिकल नाउ। हाँ, हम लोग फिर से ये प्रोग्राम लिखेंगे। ये देखिए क्या है, यहाँ पर स्क्रीन 13 उन्होंने लिया हुआ है, हम लोगों ने 13 टाइप किया। उसके बाद ये वाला हम लोग निकाल देते हैं। हाँ, यहाँ पे टाइप करते हैं लाइन। लाइन हम लोगों ने टाइप किया, यहाँ पर डाला 80, हाँ, कॉमा 80, फिर क्लोज ब्रैकेट हाइफन दिया। उसके बाद 110, कॉमा 110, कॉमा 11। ये 11 कलर में आएगा, मतलब येलो कलर में आएगा। हाँ, जब हम लोग इसको शिफ्ट F5 दबाएंगे, ये देखिए लाइन डिस्प्ले हो गया। लाइन कैसे डिस्प्ले हुआ ये समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो फिर से हाँ थोड़ा अलग कोऑर्डिनेटर लेते हैं हम लोग। हाँ, हम लोग यहाँ पर 40 लेते हैं और यहाँ पर भी हम लोग 40 लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 150 लेते हैं, 50, और इसको हम लोग दूसरा कलर दे देते हैं, 8 कलर दे दिया। हाँ, अगर हम लोग शिफ्ट F5 दबाते हैं, ये देखिए ये लाइन कहाँ पर आया, अलग कोऑर्डिनेटर दिए हम लोगों ने। मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो और कहाँ खत्म हो रहा है। ये तो ये कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है आपको? कोऑर्डिनेट No, sir. कोऑर्डिनेटर समझ में नहीं आया अभी? फिर से बताता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं? कोऑर्डिनेटर दे रहे हैं, एक्स पॉइंट, हाँ, और
वाई पॉइंट, ये x1 पॉइंट और xy पॉइंट। मतलब जो भी चीज़ हम लोग ये करते तो 4 पॉइंट में देते। एक्स का अगर हमें ये ड्रॉ करना है, देखिए मैं आपको इसमें बताता हूँ। हाँ, ये पेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दिया। हाँ, मैंने यहाँ पर एक रिक्टेंगल ड्रॉ किया, बराबर। हाँ हाँ हाँ, रिक्टेंगल में यहाँ पर ये वाला कौन सा पॉइंट हुआ, ये x1 y1 हुआ, बराबर। और ये वाला पॉइंट कौन सा हुआ, और ये x2 y2 हुआ। हाँ, मतलब ये x1 हुआ, हाँ, ये y1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, तो ये y2 हुआ। ऊपर वाला x1 x1 x2 मैं लिख कर बताता हूँ आपको। ये हुआ ये x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये y1 हुआ, ये y2 हुआ। आया समझ में? ऊपर वाला x1 होता है, x1 x2, और नीचे वाला y1 y2 होता है। इसे कोऑर्डिनेटर कहते हैं। और ये कोऑर्डिनेटर हम जब सेट करते हैं तब कोई ड्राइंग ड्रॉ होती है। अगर वो लाइन भी हो उसके लिए हम लोग x1 y1 x2 y2 वो हमें देना ही पड़ेगा। हाँ, तो ये समझ में आया, x1 y1 x2 y2। हेलो बच्चों, x1 y1 एंड x2 y2 कोऑर्डिनेटर समझ में आया आपको पी सेट का? अभी भी समझ में नहीं आया किसी को? समझ में आया सर। तो बाकी लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे। बेटा निविदा, यस सर। हाँ, x1 y1 x2 y2 समझ में आया? कोऑर्डिनेटर कैसे सेट करते हैं? यस सर। यस सर। ओके, चलो ठीक है। हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्या है, अ प्रोग्राम टू ड्रॉ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स फिल्ड विथ मैग्नेटा। हाँ, ये एग्जाम्पल से आपको पूरा पिक्चर क्लियर होगा। देखिए कैसे हमें क्या ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रॉ करना है विथ मैग्नेटा कलर से। तो उन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है, सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करके देखेंगे। देखिए, हाँ, सेल स्क्रीन उन्होंने 9 लिया हुआ है, हम लोग भी 9 लेंगे। यहाँ पर लाइन उन्होंने 20 डाला हुआ है, हाँ, हम लोग भी 20 डालेंगे। यहाँ पर 20, हाँ, उसके बाद उन्होंने 90 लिया हुआ है, 90। हम लोग भी यहाँ पर 90 लेंगे। उसके बाद उन्होंने 13 कलर लिया हुआ है, और बैकग्राउंड कलर ब्लैक लिया हुआ उन्होंने, और एंड किया हुआ। हाँ, अभी हम लोग देखेंगे एंड इसलिए किया कि जो बैकग्राउंड कलर है उसका वो जो कलर है वो कलर एंड होना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो पूरा स्क्रीन को ले लेगा, इसलिए हम लोगों ने इस प्रोग्राम को एंड किया। अभी हम लोग इसको शिफ्ट F5 दबाते हैं तो देखिए, हाँ, मैग्नेटा कलर में हम लोगों ने रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या क्या कोऑर्डिनेटर दिए, 20 20 90 और 13 ये उसका
कलर कोड है, और BF मतलब उसका बैकग्राउंड कलर, हाँ, और सीधा हम लोगों ने एंड कर दिया। अगर हम लोग एंड नहीं करते तो क्या होता, वो हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग एंड नहीं करते और शिफ्ट F5 दबाते, हाँ, फिर भी ले लिया उसने, चलो ठीक है। हाँ, ये BF अगर हम लोग निकालते और हम लोग इसको रन करके देखते, तो उसने क्या लिया, लाइन ले लिया। हमें निकालना था रेक्टेंगुलर, हाँ, तो उसके लिए BF, ये रेक्टेंगुलर ड्रॉ हो गया। आया समझ में? Yes, sir. अभी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के लिए क्या यूज किया है उन्होंने, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेटर और रेडियस उसको देनी है, हाँ? कितने साइज का हमें सर्कल ड्रॉ करना है, उसके लिए देखिए सेम स्टेटमेंट है, हैं? वो हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं सीधा। यहाँ पर सर्कल स्क्रीन लाइन के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर सर्कल, हाँ, 120, यहाँ पर 120, उसके बाद हम लोग सीधा उसको 30 कलर देंगे और उसका रेडियस का कलर उसका हम लोग 4 देंगे, हाँ? ये एक्स वाई कोऑर्डिनेटर दिया, रेडियस का साइज दिया और उसका कलर दिया 4 नंबर, हाँ? और इसको हम लोग एंड करते हैं शिफ्ट F5। ये देखिए ये यहाँ पर ड्रॉ हो गया रेड कलर में हमें दिखाई दे रहा है। हम लोग अगर दूसरा कलर देना चाहते हैं तो दूसरा कलर भी दे सकते हैं, हाँ? दूसरा कलर हम लोग देते हैं इसको 10 नंबर का कलर दिया। अभी हम लोगों ने F5 दबाया, ये देखो ये मैग्नेटा कलर में आ गया या ग्रीन कलर में आ गया, लाइट ग्रीन कलर में आ गया, हाँ? इस तरह से हम लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, हाँ? अगर हमें बड़ा सर्कल चाहिए तो हम लोग बड़ा सर्कल हम लोग डाल सकते हैं, हाँ? अलग कोऑर्डिनेटर पे, और ये यहाँ पर 30 दिया है तो हम लोग यहाँ पर इसको 60 दे देते हैं और शिफ्ट F5 दबाते हैं। ये देखिए थोड़ा बड़ा सर्कल यहाँ पर डिस्प्ले हो गया इस तरह से, हाँ? इस तरह से हम लोग सर्कल यूज कर सकते हैं। आया समझ में? अभी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं दैट इज टू ड्रॉ द सर्कल इनसाइड द सर्कल, हाँ? डिस्प्ले द सर्कल विद इन द सर्कल। हाउ वी कैन डू दिस, हाँ? यूजिंग द दिस एग्जाम्पल, सी, हाँ? और एक सर्कल हम लोग ड्रॉ करके देखते हैं यहाँ पर। सर्कल 170, 170, 30, 8, हाँ? इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ये देखिए सर्कल के अंदर हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया, उसको अलग कलर भी दिया, अलग कोऑर्डिनेशन दिया, हाँ? तो इस तरह से सर्कल हमें डिस्प्ले होगा। आया समझ में? सर्कल के अंदर सर्कल कैसे डालना है? हेलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, अगर Yes, sir. कुछ प्रॉब्लम है तो तुम लोग तुरंत मुझे बोल सकते हो स्टॉप करके कि मुझे ये समझ में नहीं आया, इस यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? Sir. No, sir.
अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला टॉपिक दैट इज पेंट स्टेटमेंट। पेंट स्टेटमेंट क्या करता है? द पेंट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल द क्लोज एरिया। क्लोज एरिया मतलब जो ड्राइंग आप लोगों ने निकाली हुई है उस एरिया के अंदर आपको अगर कलर फिल करना है, द पेंट स्टेटमेंट इज यूज टू फिल द क्लोज एरिया विथ अ स्पेसिफिक कलर। द सिंटैक्स ऑफ पेंट स्टेटमेंट इज एज फॉलोज: पेंट एक्स वाई कलर बॉर्डर कलर। हाँ, ये उसका सिंटैक्स है, पेंट एक्स वाई कलर बॉर्डर कलर। हाँ, है ना? ये हम लोग यूज करके देखते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है, इस एग्जाम को हम लोग परफॉर्म करके देखते हैं विथ पेंट स्टेटमेंट। हाँ, देखिए लेट अस डू द प्रैक्टिकल। हाँ, सेम प्रोग्राम वी कैन यूज हियर। स्क्रीन 9 सर्कल आपका जो चाहिए वो, उसके बाद आप पेंट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। पेंट, हाँ, इसमें 170 कॉमा 170, उसके बाद 18, उसके बाद 14 और एंड। शिफ्ट F5 दबाएंगे। यहाँ पर 18 क्या था? हाँ, उसका कलर, साइज, और इसको हम लोग अभी रन करते हैं। क्या हुआ? पूरा प्रोग्राम वाइट कलर में आ गया। ये हमें नहीं चाहिए था, कुछ तो गलत हो रहा है। हाँ, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 30 और इसको 4 सर्कल पेंट एंड 18 एंड 14। कुछ हमारे साथ गलत हो रहा है, हम लोग फिर से इसको करके देखते हैं। ये पूरा निकाल देते हैं हम लोग। CLS स्क्रीन 9 एंटर सर्कल 150 कॉमा 150 कॉमा 30 कॉमा 4, then paint 150 comma 150 comma 18 comma 14। सर्कल नहीं आ रहा है। पेंट कमांड टू ड्रॉ द सर्कल फिल्ड विद द कलर यूजिंग पेंट अबो स्टेटमेंट। 1 सेकेंड है। color and border color, border color और color। ये प्रैक्टिकल रन नहीं हो रहा है। पेंट कलर का जो प्रैक्टिकल है वो रन नहीं हो रहा है। इसका मैं ट्राई करूंगा और इसका एक अलग छोटा वीडियो बनाकर आपको मैं सेंड कर दूंगा। सो थैंक यू स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप दिस सेशन हियर। ऑन द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू विथ दिस पेंट program or paint statement. On the next session
we will do this the same practical. Meanwhile, I just try to solve this error. What is the error is coming here? That error I am trying to solve. And in the next session, I will explain the whole things why this is not happens. Okay. Today we will start this session. Stop this session now. Thank you. Bye, sir. Bye, beta. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Bye.